Good morning, Aptikan Sai Hornbill TV la Morning Pulse. একটা ডিস্টার্বিং খবর পেরেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ওল্ড জালুকি ভিলেজ সেক্টর বি দে থাকে একটা বুঢ়াবৰা 14 সাল বাচ্চাকে ৰেপ কৰিবলৈ এটেম্প কৰিছে কৈছে আইবি ডিটেইলছ হ'ব ৰিপৰ্টাৰ আদনালত হৰ্নবিল টিভি আজি একটা শকিং খবৰ জানি পাইছে অল জালুকে সেক্টৰ বি দে থকা 70-year-old ইনৰেড সিবে কৈকেনা তাইব্ৰা 14-year-old বাচ্চাকে ৰেপ কৰিবলৈ এটেম্প কৰা লাগা পুলিচ সোৰ্স পৰা কোৱা হিচাপ ইটো ৰেপ কৰিবলৈ এটেম্প কৰাটো 31st মে 8 AM নিচনা দে হৈছে গৈছে ডিমাপুৰ হোটেল দে সোৰ্সেছ পৰা কোৱা হিচাপ 70-year-old ইনৰেড সিবে পৰা বাচ্চাকে মিছা কৈকেনা তাই লগা টিচাৰ লগ লৈ যাব কৈকেনা গাড়ীতে লৈ যাটো সিধা ডিমাপুৰতে আনিছে গৈছে এনেকা হয়না ডিমাপুৰতে হোটেলতে লৈ যায়কেনা ৰেপ কৰিবলৈ এটেম্প কৰিছে গৈছে কিন্তু বাচ্চাটো হ'লে নিজকে বাচাবলৈ পাৰি কিনা তাই ফুলাব পাৰিছে গৈছে আৰু তাই লগা হাতে উটো বুঢ়া লগা ফোন থাকে নিমিতে তাই জানা মানুহকে কল কৰি কিনা তাই কালা গড়তে বৈ যাইছে গৈছে আৰু নেক্সট দিন 1st জুন সানডে দিনতেহি ইটো বাচ্চাকে জালুকিতে वापस লৈ যাইছে এনেকা হইনা 2nd জুন দে ভিকটিমছ লগা বাবাবৰা ওমেন পুলিচ ষ্টেচন দে FIR দাৰ্জ কৰিছে গৈছে এনেকা হইনা যোৱা কালি 3rd জুন দে ইনৰেড সিবেকে পুলিচ কামপ্ৰা ধৰি লৈছে কইনা মন খবৰ পাইছে সোৰ্সেছ আৰু কোনবা বস্তি মানুহ লগৰ পৰা মন জানি পাইছে কি ইটো ইনৰেড সিবেটো হলে তো এনেকা ক্ৰাইম কৰালাটো ফাৰ্ষ্ট টাইম নৈ গৈছে পইলাবি এনেকা সেম ক্ৰাইম কৰা নিমিতে কাস্টমাৰী ল হিচাপতে তাইকে বস্তিব্ৰা কিথাই দিছে কৈছে এনেকা হৈগেনা বিশি সাল পিছতে আৰু বস্তিতে वापस আইগেনা 14-year-old বাচ্চাকে আৰু ৰেপ কৰিবলৈ এটেম্প কৰালা বিশি আফসোস খবৰ আছে এনেকা নিজৰ বস্তি মানুহ লগা বাচ্চাকে এনেকা বিয়া কাম কৰিবলৈ কোচিছ কৰা লাগাটো আজি নিমিতে মানে আছে মই এডনাৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্সন জনসন ফৰ হৰ্নবিল টিভি আসাম স্টেট একলা নহয় হইলিবি নৰ্থ ইষ্ট সব কাৰণে বেছি প্ৰাউড অচিভমেণ্ট একটা পাইছে 9 সাল চুকৰি বিনীতা ছেত্ৰে সামৰা আছে তাই ব্ৰিটেইনছ গট ট্যালেন্ট 2025 তে ফাইনালিষ্ট থাকি কিনা সেকেন্ড রানার্স আপ পা জানি পাইছে অলপ দিন আগে দে তাই वापस আইছে ইতুলা খুশি খবৰ দে এনকাৰেজ কৰিবলৈ আৰু তাই লগা জাৰ্নি ওপৰ দে কথা কৰিবলৈ কাৰণে হৰ্নবিল টিভিৰ বা বিনীতা লগো কথা কৰিছে আইবি চাও Talent, if you have proper dedication in a particular segment, you will definitely one day you can achieve your goal. And this statement proves by Binita Chetri, who has achieved Britain's Got Talent recognition. और इस वक्त में और हॉर्नबिल टीवी टीम मौजूद है उस शख्स के साथ जो कि अभी ग्लोबली उनका रिकॉग्नाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट हुआ है बोकाजान से लेके ब्रिटेन तक उसका जर्नी और उसका स्ट्रगल पीरियड जानने के लिए अभी हम हॉर्नबिल टीवी उसके ओन रेसिडेंस में पहुंच गए हैं और पहले बोलूँगा हॉर्नबिल टीवी में आपको स्वागत है बिनीता यू हैज अचीव्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन एंड फ्रॉम बोकाजान टू ब्रिटेन हाउ वाज योर जर्नी एंड ये कब से शुरू हुआ था डांस के इस लाइन में आपको किससे अनुप्रेरणा मिले था और आपका इस जर्नी A to Z थोड़ा व्यूअर्स को बोलिए जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने डांस करना शुरू किया था एंड पहले जब बुआ घर पे रहती थी तो बुआ को देख के मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा डांस में एंड उसके बाद हम दोनों करते थे डांस एंड उसके बाद मैंने इंडिया में रियलिटी शो करे 2 एक सुपर डांसर चैप्टर 4 एंड डांस दीवानी जूनियर एंड उसके बाद फिर हम जयपुर गए जयपुर में डांस सीखने के लिए डांस वहाँ पे हम हार्दिक रावत सर के साथ सीखते हैं एंड उसके बाद मैंने एक शो किया डांस साइकिल सीज़न 2 जिसमें मैं विनर आई थी एंड उसके बाद अब हमारा शुरू होता है ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट का ऑडिशन। अच्छा मैं और एक बात जानना चाहूँगा
बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी आपका कोई ऐसे पर्टिकुलर मेंटर थे, जैसे बुआ के नाम आपने मेंशन किया, उससे पहले मतलब कोचर हिसाब से या तो कुछ आपको टेक्निकली सिखाने वाला कोई थे क्या? नहीं, तब तो नहीं थे, मतलब हम दोनों ही करते थे। दोनों बुआ के साथ खाली यूट्यूब का वीडियो देख के? हाँ, ऐसे ही। और ये जो आपका स्प्रिट है, ये आप बोकाजान से लेके ब्रिटेन तक आप पहुंच गए। आपके उम्र में कोई कोई मम्मी का आंचल, वो बोलते हैं आंचल भी नहीं छोड़ते, उसी उम्र में आपका ये जो एक स्ट्रक्चर है, आपने खुद को मजबूत हिसाब से किया, जैसे कि बुआ के साथ आपने सीखा, बोला यूट्यूब से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली। आजकल के पीढ़ियों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आप बोकाजान से लेके ब्रिटेन तक ये जर्नी हम लोग को आप बोले हैं, जैसे और कोई बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया में प्रॉपर प्लेटफॉर्म के वजह फंसे हुए, और सोशल मीडिया का ये जो जर्नी है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हो या सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, उसको कैसे करना चाहिए, थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए। जैसे कि डांस के सेगमेंट में हो, आर्ट के सेगमेंट में हो, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हैं, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम वायरल हुआ था, तो आजकल के पीढ़ियों को, आजकल के बच्चे को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है करने में वो करिए। जैसे कि मुझे डांस अच्छा लगता था बचपन से, अभी बचपन नहीं हूँ, मतलब जब मैं छोटी सी थी 3 साल की, तब से मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। एंड देन मैं डांस को मतलब ग्रो करते रही, एंड देन एक ना एक दिन मुझे इंटरनेशनल स्टेज में भी जाने का मौका मिला, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट। एंड वैसे आप भी अपने कल्चर को आगे बढ़ाते रहिए, एंड उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छा, और मैं इस बीच में एक और बात जानना चाहूँगा, जैसे कि आपका फैमिली है बहुत सपोर्टिव है, आपका पिताजी है, आपका बुआ जी, सारे डांस के लिए आपको उत्साहित करते थे, तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन आया था कि पढ़ाई बीच में अटक गया था, आपका पढ़ाई है, डांस अभी मत करो, ऐसे क्या होगा, ऐसा कुछ नेगेटिव आपको कोई प्रेशर आए थे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं आया था, मतलब दोनों को बैलेंस करना होता है, बिकॉज पढ़ाई भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए डांस है। एंड दोनों को मैंने बैलेंस करके रखा है, क्योंकि मैं पहले से पढ़ाई भी करते आ रही हूँ एंड डांस भी करते आ रही हूँ, तो अभी मेरा आदत हो गया है, तो ऐसा अटकता नहीं है कभी। अटकता नहीं है ना? फ्यूचर में आपको क्या आपका एम्बिशन है, एज ए कल्चरल लाइन में हो या डांसिंग लाइन में हो, या तो आप पढ़ाई में भी बोल रहे हो, आप बैलेंस मेंटेन करके रखे हो, तो फ्यूचर में आपको क्या बनने की उम्मीद रखते हो आप? अभी तक मैंने ऐसा तो नहीं सोचा, बट हाँ मुझे अभी तक है कि डांसर बनना है मुझे एक, और कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर ना? आपका मेन जो आपको उत्साह मिलते हैं, जैसे कि आजकल आपने आपके एक सर का नाम आपने मेंशन किया था, बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर है आजकल रियलिटी शो में, इंडिया में हो चाहे ग्लोबली बहुत सारे रियलिटी शो, उस सब के बीच में अमोंग देम कोई आपका फेवरेट कैरेक्टर है क्या? ऐसा तो फेवरेट नहीं है, बट हाँ मुझे अपने हमारे जो सर हैं हार्दिक सर, उनका डांस पहले से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले से उनको देखते आ रही हूँ। अच्छा, आप कितने उम्र से शुरू किए थे और अभी जाके आपने कितने उम्र में ये अचीव किया? जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने डांस करना शुरू किया था, और अभी? और अभी मैं 9 इयर्स की हूँ। अच्छा, 9 इयर्स की हो। काफ़ी और आगे जाना है आपको। और एक बात बोलना चाहेंगे, आपका जो स्कूल के जो टीचर्स लोग हैं, आपने जैसे बोला आपके एकेडमिक सीजन में तो आपका टीचर थे, लेकिन डांस के सेगमेंट में आपका बुआ जी और आपका यूट्यूब वीडियो से आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला। फ्यूचर में और आगे बढ़ने के लिए जैसे कोचिंग बहुत ज़रूरी है, आजकल के ज़माने में बहुत सारे रियलिटी शो में बहुत टफ आपको टास्क मिलेंगे जिसमें आपको आगे बढ़ना होगा। ऐसा कोई कोच लेने का और फ्यूचर में आगे बढ़ने का कुछ उम्मीद है कि आपको, मतलब मन में आप ठान रहे हो क्या, मैं फिर किसी के साथ जाके फिर और अच्छे से क्लास लूँगा? अभी तक तो ये सब कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मतलब जो चलना चलते रहे, मतलब ऐसे है मेरा। अच्छा, और मम्मी पापा को क्या बोलोगे लास्ट में? आ, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज सबसे पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले बुआ आती है मेरी, जो बचपन से मुझे सपोर्ट कर रही है, एंड देन माय फैमिली और माय सर। अच्छा, थैंक यू। और ये था हम लोग के बीच में जो विनीता छेत्री, हु हैज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज नाउ, और अभी इंटरनेट में एक सेंसेशन है। जैसे कि इंस्टाग्राम में इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद बोकाजान से लेके नेशनली, उसके बाद इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइजेशन मिला, उसके लिए काफ़ी
नॉर्थ ईस्ट से जो सपोर्ट है, जैसे कि पहला सपोर्ट है उसके बुआ और उसके पेरेंट्स, और बुकाजान से लेके ब्रिटेन तक ये जो जर्नी, ये कोई मुंह की बात नहीं है जो कि ऐसे ही उनने अचीव किया। और ये विनीता छेत्री का ये स्ट्रगल, विनीता छेत्री का ये जो एक परिक्रमा है बोकाजान से ब्रिटेन तक, ये बहुत उत्साहित करने वाला एक स्टोरी है। जैसे कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे टैलेंट है और बिना आपका जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, और प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के वजह से बहुत सारे टैलेंट ऐसे ही खो जाते हैं, ऐसे ही जीरो हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग हॉर्नबिल टीवी। मी रिपोर्टर दीप सोइकिया फ्रॉम बोकाजान। दिल्लीला रोहिणी दे कमर्शियल बिल्डिंग एकता गिरिगिना मानु बिशिगे फसाई दिया भावना से असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस आर.के. सिनाब्रा कइसे तागान 4:15 PM दे खबर पाइसे और ताकान सर्च ऑपरेशन चलि आछे मानु 4-5 जून फासिगिना थाका भावना से कुइना जनाइसे। मैं आर.के. सिन्हा असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से करीब 4:15 बजे के आसपास कॉल मिला कि रोहिणी सेक्टर 7 एरिया में हाउस कोलैप्स हुई है। तो कॉल को डिपार्टमेंट ने रिसीव किया और जितने भी एजेंसी हैं गवर्नमेंट की, सारे अपने टाइम पे यहाँ पहुँचे और सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है जेसीबी की मदद से। सर कितने बजे की कुछ कॉल थी बता पाएंगे? ये कॉल करीब 4:15 बजे के आसपास की। तो कितने लोगों को फंसने की आशंका है यहाँ के बाद? इन्होंने 4-5 लोगों की बताया कि 4-5 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो जस्टिफिकेशन के लिए और क्लियर होने के लिए हमने जेसीबी वगैरह एमसीटी से मंगवाया, मैसेज दिया और अभी टाइम पे सर्च ऑपरेशन चल रही है। सर अभी इंडिया नेशनल पाकिस्तान भी कंट्री कुनबा दे ताखान लगा डेलीगेशन पठावले कोयसे और इतो ऊपर बीजेपी एमपी ब्रिजलाल कुन जेडीयू एमपी संजय झाबरा लीड कुरिया टीम दे थकसे ताइबा कुसे इंडिया नेशनल कुरबले काम नाय और मानु नेशनल कुरबो कोइले इंटेलिजेंस लागे ताय और कुसे कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ब्रा पाकिस्तान लगा मास्क हटाई दिसे। जेडीयू एमपी संजय झा लीड कोरिया डेलीगेशन तो जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जाइसे। पाकिस्तान क्या बताएगा कि इतने सालों तक आतंकवाद और दहशतवाद फैलाने का काम भारत में किया, इतने लोगों की जान पाकिस्तान ने ली, ये बताएगा जाकर। देखिए भारत का ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये अलग अलग 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ सेंसिटाइज करने का काम सभी डेलीगेशंस के लोगों ने किया है। और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ भारत के प्रति संवेदना और जो 22 तारीख को हमला हुआ उसके प्रति निंदा करने का काम किया। हम यूएई, DR कॉन्गो, सियरा लियोन और लाइबेरिया गए थे। सियरा लियोन और लाइबेरिया में तो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मौन रखने का काम किया, मतलब मोमेंट ऑफ साइलेंस। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, और जिस प्रकार से सभी लोग भारत के साथ आज इस आतंकवाद की लड़ाई में पूरे ताकत से खड़े हैं। तते शिवसेना एमपी श्रीकांत शिंदे ब्रा भी पाकिस्तान ब्रा इनका प्लान कुरिया ऊपर सवाल कुरिना कुइसे पाकिस्तान तो अलग कंट्री खान की कुबो कुन ब्रा टेररिज्म के फिलायस तारो कुइसे इंडिया दो वार ना लगे किले माने इंडिया दो शांति थाका कंट्री एकता से। ऐसा है, पाकिस्तान की हरकत सब लोग जान गए हैं। नकल करने से कोई फायदा नहीं, नकल भी अकल से होती है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा क्या क्या वो बोल गए कि नहीं साहब, खाली हमारे 11 एयरबेसन नहीं तबाह हुए और भी तबाह हो गए। अपने ही पोल उन्होंने खुद ही खोल दिया है। तो क्या करना है वो अपना मुल्क है करेंगे, लेकिन भारत ने जो डेलीगेशन भेजे पूरी दुनिया में, वो उन्हें पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अब उनका भेजें ना भेजें उनकी मर्जी, कोई फायदा नहीं होगा। 17 साल पीछे इंडिया दे नेशनल सेंसस लोबले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रा जनाई से पॉपुलेशन सेंसस तो मार्च 1, 2027 दे शुरू होबो और दुईता फेज प्रा लोबले से पॉपुलेशन सेंसस लोग दे कास्ट सेंसस भी लोबले से कोई ना जनाई से। किंतु लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर लगा जगह स्नो था क्या खान दे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दे सेंसस तो अक्टूबर 2026 दे शुरू होबो कुछ ऑपोजिशन खान प्रा बिशी देरी पॉपुलेशन सेंसस और कास्ट सेंसस भी मांगी ना आई है। असम प्रदेश कांग्रेस लगा नतून प्रेसिडेंट गौरव गोगोई ब्रा 2 दिन कारणे बराकते विजिट कुरिगिना से कछार डिस्ट्रिक्ट फ्लड प्रा इफेक्ट हुआ एरिया और रिलीफ कैंप्स खान तो इंस्पेक्ट कुरुबले निम्दे
প্ৰেজিডেণ্টৰা তালাকা ফাৰ্ষ্ট ভিজিটতে বৰাক ভেলী চব ফ্লাড হোৱা দেখি পাইছে আৰু কৈছে কি তাইবৰা ভিক্টিম খান লগত লগ পাই কিনা তাখান লগত কথা কৰি কিনা দুখ আৰু দিগদাৰ পাতো শুনিব লৈছিলোঁ যে 4 তাৰিখে বানপানী খবৰ ল'বলৈ আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা টিম सिलसिले आहिबो तो वही आज हम किया है। हमारा AICC सेक्रेटरी पृथ्वीराज साठे जी भी हमारे साथ आए हैं। तो हम 2 दिन का हमारा प्रोग्राम है, टूर प्रोग्राम है और बाढ़ में बानपानी जी মানুহৰ সমস্যা হৈছে আমি সেইখিনি আমি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ, মানুহৰ বুজ ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা অলপ আমি সহায় আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ। আচ্ছা, বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, ধান বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰি আছে, ধান সামগ্ৰী বিচাৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজে হাহাকাৰ কৰি আছে। এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? যোৱাকালিও দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে। আমি এতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি যে ওলাম, বিভিন্ন আমি মানুহৰ লগত আমি কথাখিনি পাতিম, মানুহৰ ৰায় কি, মানুহে কি বিচাৰে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ আমি শুনিম আৰু তাৰপিছত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দিম। দেখা গৈছে বান শিবিৰত তাত গামোচা, ফুলৰ মালা আৰু শ্লোগান দি বিজেপি কৰ্মীসকলে আদৰণি জনাইছে এটা বান শিবিৰত। আপুনি কি ক'ব? আজি আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে ইয়াত আমি এয়াৰপৰ্টত আহিছোঁ, ইয়াত কোনো শ্লোগান নাই। আমি এটা চিৰিয়াছ কাম লৈ আহিছোঁ। ইয়াত আজি যদিও নতুন সভাপতি হিচাপে প্ৰথমবাৰ বাবে ইয়াত আহিছোঁ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াত শ্লোগানিয়াৰিং নাই। আমি মাত্ৰ আমাৰ যিসকলে কৰ্মী গামোচা দিবলৈ বিচাৰে নিয়ম পৰম্পৰা সেইখিনি কৰি আমি ডাইৰেক্টলি আমি ৰিলিফ কেম্পলৈ আমি যামগৈ। IPL 2025 ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ পৰা চেম্পিয়নশ্বিপ জিতি কিনা খুশিটো ষ্টেটতে মানাই থাকে সময় ছাপৰ্টাৰ্ছ খান বেছি জমা কৰি কিনা থাকে দে ষ্টেম্পিড হৈ যাইছে। ইটোলা ইনচিডেণ্টে মানুহ বেছি জখম পাই কিনা আছে আৰু কোনোবা মানুহ মৰিছে কৈ কিনা খবৰ পাই আছে। ইটোলা ওপৰতে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ DK শিৱকুমাৰ পৰা পুলিচ কমিশ্যনাৰ লগত কথা কৰিছে আৰু হস্পিটেল দেৱী যাবলৈ আছে কৈ কিনা জনাইছে। ডেপুটি CM ৰা এতিয়া তাক মানুহ কিমান মৰিছে ইটোলা একজেক্ট নম্বৰটো ক'বলৈ নাপাৰিব কৈ কিনা কৈছে। I have spoken to the police commissioner and all the people. I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is at present number? Yes. Of course. There is some issues. I will come back to you after I visit the hospital. Any numbers on the death toll? No, I can't. Only 5,000 police personnel were deployed, sir. You said the crowd that came in was running into thousands, sir. Was No, this enough? it was not thousands, it was lakhs. ನಾ ಯಾರನ್ನೂ see ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ইটোলা মামলা ওপৰতে বিজেপি প্ৰেচিডেণ্ট BY বিজয়েন্দ্ৰ ব্ৰাবি মিডিয়া লগত কথা কৰা সময় কৈছে কি ইটো ট্ৰেজেডিৰ কাৰণে ষ্টেট চৰকাৰ বা ৰেছপন্সিবিলিটি দ ল'বলৈ লাগে। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major state government was more interested in publicity rather than the social. So this has resulted in the death of more than 11 people. And some more youths, they are still serious, they are inside ICU also. I just spoke to one of the victims. No police was there inside. Ambulance facility was not there. And they themselves were rushed to the hospital, to the Boring Hospital now. So I demand Chief Minister
to take up the responsibility, and he should refer the matter for the judicial inquiry and let Chief Minister decide who has to take up the responsibility. Let Chief Minister decide. But he has to refer the matter to the judicial inquiry. ₹500 ला नोट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर मार्च 2026 पर शुरू करिगना आरबी नचुलाई जाबुली आसे क्वादो मिशा आसे कोइना प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ब्रा जनाई दिगिना कुइसे आरबीआई ब्रा एनेगा इको जानकारी दिया ना एक यूट्यूब चैनल कैपिटल टीवी कोइना था क्या कुइसे ₹500 नोट्स खान आया साल मार्च पीछे और नचुलाई जाबो कोई थकिसे किले माने गवर्नमेंट ब्रा आरबी इतो डिनोमिनेशन की प्रिंट नकरी जाबुले आसे कोई थकिसे PIB किन्तु सफा करिसे एतो खबर दो होसा নহয় और मन खान के एनेगा मिस इनफॉरमेशन खान विश्वास नकरबी कोइना खबर खान वेरीफाई करबी कइसे बिहार ला 3टा पुलिस पर्सनल के वेंसडे दे सस्पेंड करि दिसे 13 साल थका बच्चा एकता लगा रेप हुआ पीछे SHO प्रमोद कुमार सब इंस्पेक्टर मंजार अहमद खान और कांस्टेबल सलीमुद्दीन फरीदी खान के सस्पेंड करि दिसे तखन अक्यूज के अरेस्ट करबले नापारा निमिते बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कुन विक्टिम ला फैमिली के लोक पाइसे ताई कुसे मानु खान इतु मामला पॉलिटिसाइज नकरुबले लागे किले माने इतु ह्यूमैनिटी ला कोथास डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा प्रभी कुसे ताई आजी साहित्य जाय से और स्ट्रिक्ट एक्शन लुगो जरूर पहले मैं ये चाहूंगा कि मुझे पता चले कि इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है और मेरी सारी हमदर्दियां उस परिवार के साथ है। मुझे आज कुछ लोग मिलने आए थे, मैंने उनसे भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की कि भाई इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, इसमें संवेदनशीलता दिखाइए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये खालिस और खालिस मानवता का विषय। महिलाओं की गरिमा क्या मतलब है भाई? महिलाओं की गरिमा के बगैर आपकी गरिमा बन सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये समाज की गरिमा का प्रश्न है। अरे महिलाओं के साथ हम इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का हमारा तरीका, क्या ये इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? हरगिज नहीं। और ये महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं, समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध है। के संज्ञान में आने के बाद त्वरित कार्रवाई हुई है और कल मैं जा भी रहा हूं। पूरी जानकारी प्राप्त करके समीक्षा कर करके कर्तव्यहीन लोगों पर भी कार्रवाई होगी और इस तरह के मानवता के जो दुश्मन हैं, शर्मसार कर रहे हैं बिहार को, ऐसे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इतना का से तेला बुलेटिन का ने और अलग-अलग खबरों का निसाई तक भी ऑन बिल टीवी। गुड बाय।